I want to share two things. मैं दो बातें शेयर करना चाहता हूँ. One is thank God for the reminder that in our life we need to surrender our life to Christ. एक बात स्मरण दिलाने के लिए कि हमें परमेश्वर को हमारे जीवन को समर्पित करना है, समर्पण करना है. Surrender unconditionally before the Lord. और बिना कोई कंडीशन के परमेश्वर को समर्पण होना. That's a blessed life. और ये एक आशीषित जीवन है. Where we are allowing the Lord to take complete charge and authority over our lives. जहाँ पर हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में हम नियंत्रण देने के लिए. And another word we can use is the word the word consecration. और एक वर्ड जो हम सुनते हैं कि consecration. When we surrender life, that will bring rest in our lives. और जब हम समर्पण करते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर एक शांति को लेकर आता है. We realize that it is the Lord who is taking all the responsibility in our lives. और हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण ले रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है. And we should know that I should not try to control everything in my life. और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी हमें नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है. We should let God to control everything. और परमेश्वर को हमें निर्देशित करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए छोड़ना है. So I thank God for that reminder. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इसे याद दिलाने के लिए. We read in Romans 12 that about our body. और मैं रोमियो के 12वें अध्याय में हम हमारे शरीर के बारे में पढ़ते हैं. ब्रदर आपका आवाज थोड़ा काफी कम आ रहा है. कैन यू बी क्लोजर सो वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली? ओके ब्रदर. नॉट क्लियर. We read in Romans chapter 12 that I urge you, brethren, by the mercies of the Lord, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. So it's a blessed thing. God has given us all a body. ये एक आशीर्वाद बात है, परमेश्वर ने हम सबको शरीर को दिया है. So long as there is life in the body, we should learn to offer this body as a sacrifice, to present it as a living sacrifice before the Lord. जब तक हम जीवित है, शरीर में जान है, तब तक हम इसे परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है. In such a way that it is acceptable, our offering, our sacrificing of our body is acceptable to God. और इस तरह से हमें बलिदान करना है कि वो परमेश्वर के लिए एक स्वीकार योग्य हो. And that is actually the spiritual service of worship. और ये जो है एक आत्मिक सेवा है. In another place, that is in 1 Peter chapter 3, we read, sanctify Jesus as Lord in your lives. और परमेश्वर को एक प्रभु जानकर हमें उसके साथ हम शुद्ध होते चले. We all know that we understand allowing Jesus, accepting Jesus as Savior in our lives. Sorry? Savior. We understand that easily. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धारक है. We want to receive forgiveness and we say that I accept Jesus as my Savior. हम पापों से क्षमा चाहते हैं और हम उसको उद्धारक के रूप में हम मानते हैं. But allowing Jesus to be the Lord in our life is far more deeper experience. लेकिन परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर प्रभु करके स्वीकार करना ये बहुत ही गहरा बात है. We are willingly and consciously allowing Jesus his rightful place. और हम इच्छा से और अनुमति दे रहे हैं कि यही स्थान है परमेश्वर का, उस स्थान को हम उसे हमारे जीवन में दे रहे हैं. As Lord and Master of our life. और हमारे जीवन के अंदर एक प्रभु के रूप में हम उसको स्थान देते हैं. Yeah, second thing I wanted to what came to my
heart is about learning to glorify God in everything. और एक दूसरी चीज जो मेरे मन में आ रही थी वो ये है कि हर बात के अंदर द्वारा हमें प्रभु को महिमा देना सीखना है। Recently, something which touched my heart is when I read something which A.W. Tozer wrote. और एक हाल ही में मैंने जब A.W. टोजर ने जो लिखा हुआ था वो जब पढ़ा उससे मुझे हृदय को स्पर्श हुआ। He wrote something like, if you really love the Lord, you will pray like this. You will ask the Lord to glorify it at my expense. और यदि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे स्वयं के जीवन के आधार में होने वाली बातों से हम प्रभु को महिमा देना चाहेंगे। I am willingly, consciously, I am willing to go down. I am willing to be expended, but the Lord's name should be glorified. मैं अपने जीवन में नीचे जाना चाहता हूं, होने दे कि मेरा जीवन खर्च किया जाए पर परमेश्वर के जीवन को महिमा मिल सके। Whatever is the cost, Lord, but through my life, your name should be exalted. Your name should be glorified. और कोई भी कीमत मुझे क्यों ना चुकानी पड़े पर मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होनी चाहिए। And in that prayer, he mentioned, whatever is the cost, I have no limit on that expense I am willing to pay, but your name should be glorified through और my. कोई भी कीमत प्रभु, कोई भी खर्च या कीमत मेरे जीवन से चुकानी क्यों ना पड़े प्रभु, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी ही केवल महिमा होनी चाहिए। Yeah, that was also something which the Lord was reminding me in these days. और इन दिनों के अंदर परमेश्वर ये बात भी मुझे याद दिला रहा था। It's almost like the same as the prayer of the desire of John the Baptist. और ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वाली की जो प्रार्थना और इच्छा के समान ही है। I am willing to go down, but he should be exalted. और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं घटूं पर परमेश्वर और भी ऊपर बढ़े। So may God help us to a place of such surrender on place. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसे एक समर्पण के जगह पर हमारे जीवन के अंदर आ जाए। And along with the let there be desire in our hearts that in every situation through my life, Jesus' name should be glorified. और हमारे जीवन के अंदर ये इच्छा हो कि प्रभु मेरी जीवन की हर बातों के द्वारा केवल और केवल प्रभु की महिमा होने पाए। Amen. I praise and thank God for this message today that I heard. और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ आज जो संदेश सुना उसके लिए। As Brother Kiran was sharing that we have to lay ourselves on the altar. और जैसे हमने सुना कि हमें अपने आप को पूरी तरह से उस वेदी के ऊपर रख देना है। I know it is a very difficult thing to put ourselves on the altar many a times. और कई बार होता है हमारे लिए कि बहुत बार अपने आप को उस वेदी पर रखना बहुत बार कठिन हो जाता है। But when we do it according to the Lord's perfect will, it will glorify the Lord. और लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जब हम उसे करते हैं तब वो परमेश्वर की महिमा करेगा। And as we heard that in every situation we have to give thanks and praise to our God. और जैसे हमने सुना कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति हमको देना है। As I remember Psalms, the psalmist cries out in Psalms 92. और भजन संहिता 92 में भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, Verse 1 and 2. 1 और 2 वचन। It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness by night. और यहोवा का धन्यवाद करना भला है और हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। Yes, it is good to give thanks to the Lord because God is such a good God and He has all good plans for us. और परमेश्वर को धन्यवाद देना सच में भला है क्योंकि उसकी योजना हमारे लिए कितनी भली है। And even if the situations are not good, we feel that they are overwhelming or they are, very depressing situations, still to sing His praise. और कई बार हो सकता है हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां सही न हो, बहुत ही ज्यादा बोझ हमारे जीवन के अंदर हो, निराशा भरी हो, लेकिन फिर भी हम प्रभु की स्तुति गा सकते हैं। The Bible says that put on the garment of praise for a spirit of heaviness. और प्रभु के वचन में लिखा है कि जहां पर बहुत ही एक भारी आत्मा हमारे अंदर होती है निराशा की, उसकी जगह पर हम स्तुति का ओढ़ना या वस्त्रों को हम धारण करें। We have to keep on singing God's praise no matter what the situation और is. परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहना To है। declare God's loving kindness. और प्रभु की करुणा जो है उसको हमको बताते रहना है। Says that the Lord's loving kindness is better than life. तो जैसे हम गाते, जैसे लिखा गया है कि परमेश्वर की करुणा जीवन से बेहतर उत्तम है And your faithfulness by night. और प्रति रात को तेरी सच्चाई। Truly God is a faithful God. He's a heavenly Father, is very faithful. और सच में हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता सच में वास्तव में बहुत ही विश्वास योग्य है। And one more thing that I was blessed in the camp about.
और कैंप के अंदर और एक चीज से जो मैं आशीषित हुई थी वो ये that है, I have to find my place in the body of Christ. और मुझे परमेश्वर के उस देह के अंदर अपनी जगह को ढूंढना है। And the verse that was quoted from Ephesians 2 was really touched my heart. Ephesians 2 verse 19, 20. और इफिसियों की 21. पत्री 2 अध्याय 19 से 21 वचन, And I want to read it from the Message Bible. और मैं मैसेज अनुवाद से पढ़ना चाहूंगी। That's plain enough, isn't it? You no longer wandering exile. This kingdom of faith is now your home country. You are no longer strangers or outsiders. You belong here with as much right to the name Christian as anyone. God is building a home. He's using us all, irrespective of how we got here. In what He is building, He used the apostles and prophets for the foundation. Now He's using you, fitting you in brick by brick, stone by stone, with Christ Jesus as the cornerstone that holds all the parts together. And we see it taking shape day after day. A holy temple built by God, all of us built into it, a temple in which God is quite at home. And I praise God for this, but I read it here, but I didn't, when I read it in the Message Bible, it really opened my eyes that part by part, I'm a brick or a stone. God has a use for me. और ये जब मैसेज अनुवाद में मैंने जब इसको पढ़ा कि एक ईंट बनकर, एक पत्थर बनकर प्रभु मुझे वहां पर इस्तेमाल करता है निर्माण करने के लिए। He is using you, fitting you brick by brick. और वहां पर आपको इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर आपको फिट कर रहा है, ईंट पर ईंट बनाते हुए। Am I available to the Lord for this? और क्या मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध हूँ इस काम के लिए? Or am I as a left out brick? और क्या मैं एक छोड़ दी गई एक ईंट हूँ? I think I can do everything on my own. मुझे लगता है कि मैं अपने आप से सब कुछ कर सकती हूँ, No, I cannot do. लेकिन मैं नहीं कर सकती। I need Jesus so much in my life. मुझे यीशु मसीह की जरूरत मेरे जीवन में बहुत ज्यादा है, And that only can take shape day by day in my life. और इसी से मेरे जीवन के अंदर प्रतिदिन एक आकार आता जाएगा। And just not like that. और इसी प्रकार केवल इतना ही He नहीं, wants to make a holy temple. और वो मुझे एक पवित्र मंदिर बनाना चाहता So है। this body of mine has to be a holy temple for the Lord, और मेरा ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर बनना चाहिए, in which it says a temple in which is quite where God is quite at home. और जहां पर ऐसा मंदिर प्रभु बनाना चाहता है, जैसे यहाँ लिखा है कि जहां पर वो अपने घर में है, वैसा एहसास वो करता है प्रभु। So is my heart where God is at home. और क्या मेरा हृदय आज ऐसा है जहां पर प्रभु अपना घर उसे समझता हो? Many a times I see I failed and I see that I am on the throne of my heart. कई बार मैं देखती हूँ, कई बार मैं असफल रही हूँ, और परमेश्वर जो है मेरे जीवन के सिंहासन के ऊपर मैं अपने आप को रखती हूँ। I have not given God that place. मैंने वो जगह परमेश्वर को कई बार मैं नहीं दे I पाई want to हूँ। surrender. So many testimonies we heard that I want to surrender this heart to God. और कई बार बहुत सारी गवाही आज हमने सुनी है, और मैं मेरे जीवन को, मेरे हृदय को आज परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करना चाहती हूँ। And as we sang this morning, sitting at the feet of Jesus, जैसे आज सुबह हमने गाया कि यीशु मसीह के चरणों के ऊपर बैठते हुए I want to be like Mary. मैं उस मरियम के समान बनना चाहती हूँ। Many a times I'm like Martha, so occupied with and distracted with so many household choruses during the day. और कई बार मैं उस मार्था के समान बन जाती हूँ, जहाँ बहुत सारी घर काम काज की बातों के द्वारा मैं बहुत ही विचलित रहती हूँ। I want to be like Mary, to sit at the Lord's feet and to listen to Him. और मैं उस मरियम के समान बनना चाहती हूँ जो उस परमेश्वर के चरणों पर बैठकर उसको सुन Pray that the Lord will fill me with His grace and His Holy Spirit, that I may continue my life to glorify His name. और प्रभु मुझे अपने अनुग्रह से, अपनी पवित्र आत्मा से भरे, ताकि मेरे जीवन से निरंतर मैं परमेश्वर को महिमा देती रहूं। Praise God. प्रभु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद। आज जो भी वचन मैंने सुना, मैं सच में बहुत आशीषित हुई, और मैंने परमेश्वर ने मेरे हृदय से बातें की इन वचनों के द्वारा, और ये सीखा कि मुझे अपनी जो इच्छा है, सब मेरी जो भी परिस्थितियां परमेश्वर मेरे जीवन में आने दे रहा है, जैसे मैंने हेलेन जो मिशनरी थी उनके एग्जाम्पल से जैसे मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों को लाया, फिर भी उस परिस्थिति में भी परमेश्वर उसको धन्यवाद कहने के लिए कह रहा है। अगर सामान्य रूप से हम इंसानी दिमाग से सोचे तो ऐसी परिस्थिति में कोई कैसे परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, जहां पर उनके साथ इतना गलत काम किया गया। और
मुझे एक वचन याद आया जो बहुत ही मेरे हृदय के करीब एक वचन है बाइबल में, जो हमेशा मेरे हृदय में रहता है। यशाया 55 का 8 और 9 वचन। वहां लिखा है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, गॉड्स वेज आर नॉट आर वेज, गॉड्स थॉट्स आर नॉट आर थॉट्स, एज फार द हेवन इज फ्रॉम द अर्थ, एज द थॉट्स आर हायर फ्रॉम अस। गॉड्स के थॉट जो है वो हमसे कई ऊंचे हैं। हम परमेश्वर की उस महान विजडम को समझना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे हुआ कि कल कल रात को प्रभु ने मेरे हृदय से बात की। प्रभु ने मुझसे एक प्रश्न पूछा मेरे हृदय में कि स्नेहा, अगर मैं इस परिस्थिति में तुमको पूरे जीवन भर यहीं पर रखूं और यही मेरी इच्छा हो, तो तुम रहने के लिए तैयार हो क्या? ये प्रश्न जब मेरे हृदय में परमेश्वर ने पूछा, तो सच कहूं तो मैंने कहा कि मैं आंसर देने के लिए झिझक रही थी। मैंने कहा कि प्रभु, मुझे सच कहूं तो मेरी ये इच्छा है कि मैं इस परिस्थिति में नहीं रहना चाहती हूँ प्रभु, लेकिन अगर आपकी इच्छा है प्रभु, तो आप मुझे अगर जीवन भर भी रखना चाहते हैं तो आप मुझे अनुग्रह देंगे उस चीज को। अगर आप मुझे ताकत देते हैं तो मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ। ऐसे मैंने परमेश्वर से कहा, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसे परमेश्वर परिस्थितियों में रखता है। कहीं ना कहीं अगर हम अपने हृदय को जांचेंगे, तो मैं अपने हृदय को जांच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि है, डिसकंटेनमेंट है, एक असंतुष्टि है मेरे हृदय में कि परिस्थितियां बदलनी चाहिए, ऐसी एक डीप डाउन एक इच्छा है। लेकिन एक वचन है जहां पे लिखा है कि जब हम संतुष्टि के बिना हम ईश्वरीय नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी गॉडली विदाउट कंटेंट इन गॉड अलोन। तो इस जो भी परिस्थितियां परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने दी, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना और स्तुति करना सिखाया। क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है तो हर कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, हर कोई प्रभु को महिमा दे सकता है, लेकिन बुरे हालात में परमेश्वर की स्तुति करना, ये परमेश्वर से सीखना पड़ता है। और मेरे भी जीवन में मैंने यही देखा। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कुछ समय पहले कि क्यों परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहिए, क्यों प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। तो इस बात पर मैं विचार कर रही थी, तो जब मुझे ये समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर भी कोई नहीं है, स्वर्ग में भी कोई नहीं है। और जो कोई भी या इस दुनिया में मनुष्य को आशीष मिली है या गिफ्ट मिला है या जितना भी जो भी मिला है, सब कुछ, जैसे उदाहरण के लिए अगर एक संगीतकार बहुत सुंदर गाने वाला एक कोई कलाकार हो, वो इतना सुरीला गाता है कि लोग बह जाते हैं उस गाने वाले के आवाज से। लेकिन उस गाने वाले ने क्या अपने आवाज को खुद बनाया है? नहीं, वो परमेश्वर ने दिया है। हर एक चीज जो जैसे भजनकार भी कहता है कि सारी सृष्टि ये परमेश्वर की महिमा करती है। ये सृष्टि या ये दुनिया जो भी बनाया गया है, केवल परमेश्वर की महिमा इससे हम देख पाते हैं। तो और इससे भी बढ़कर परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम, कोई उसके तुल्य नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई चीज नहीं परमेश्वर के तुल्य। इसलिए परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। तो मैं अपने जीवन में ये सोच रही थी कि मैं कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे सबसे पहले मेरे घर में मेरा बर्ताव कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है। और कई बार मेरे वजह से मेरे प्रभु के नाम की निंदा हुई है, मेरे व्यवहार के वजह से भूतकाल में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं जीती हूँ अपने घर में, मेरे सास के सामने या मेरे पति के सामने या मेरे बच्चों के सामने, मेरे परमेश्वर के नाम की बदनामी नहीं होनी चाहिए कि ये एक विश्वासी है, प्रभु से डरती है, लेकिन देखो इसका जीवन, मेरा नाम, यीशु का नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, यीशु मेरे अंदर है, तो यीशु का नाम मेरे द्वारा निंदा ना पाए। और इस तरह से सबसे पहले मैं अपने घर में परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है। और कई बार मैंने परमेश्वर की महिमा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपने सुविधा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सुविधा को त्यागना नहीं है। लेकिन जैसे अबू अंकल बता रहे थे कि हमें अब AW टोजर का जो उदाहरण बताया कि सुविधा को भी त्यागने के लिए तैयार होना, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं भी परमेश्वर, ताकि जब प्रभु के सामने एक दिन खड़े रहूं तो परमेश्वर कह पाए कि मैंने परमेश्वर के नाम की महिमा की इस दुनिया में। तो प्रभु को ही सारी महिमा मिले। आमीन। I was blessed by the message. और मैं संदेश के द्वारा आज आशीषित हुआ। I was connecting to the game that we played. और जो गेम जो हमने वहां खेला था उसके साथ मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था।
So when I got this responsibility, I took some help to design that picture of the body of Christ. और जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि ये गेम मुझे बनाना है, तब मैं वो चित्र जो यीशु मसीह का है मैं बनाने लगा उसको। Then after that, in my house, I think my son and my wife were not at home because they went to work and office. और मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा नहीं था, वो काम पर गए थे। It was a huge sheet, almost 7 feet of sheet. I have to display in the hall actually. और वहां पर बहुत एक बड़ी शीट वो थी, 7 फीट की लंबी वो शीट थी जिसको मुझे उस डिस्प्ले करना था वहां पर। Now this is going to be cut into 80 pieces. और ये जो बड़ा 7 फीट का जो चित्र है यीशु मसीह की देह का, वो मुझे 80 पीस के अंदर काटना था। Cutting was easy for me, but after that to fix what to do, so I was very careful to cut as well as to write down where it should come actually. और काटना तो बड़ा आसान था, लेकिन वो 80 जो पीस थे उसको एक साथ में किसके बाद कौन सा आना चाहिए उसको लिख कर मार्क कर कर, ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन भाग था। To be honest, my hands were shaking while cutting the papers actually. और जब मैं ईमानदारी से कहूंगा, जब मैं वो पेपर को काट रहा था यहाँ वहां से, तो वो मेरे हाथ थरथरा रहे थे। So I have to cut somebody's face, somebody's hand, and the picture has to come. I cut into pieces and then I have to put in order again. और वहां पर मुझे किसी के हाथ पैर चेहरा इस तरह से काटना था ताकि, और उसको रखना भी इस तरह से क्रम में था ताकि वो बाद में एक जैसा वो दे दिख सके उसके बाद। So the long story short, to make that, I have to make so much of plan. I have to write down every top to bottom, left to right, everything I have to write down. और मैं शमशीद में कहना चाहूंगा, इतनी ज्यादा योजना मुझे उसके लिए बनानी पड़ी, ऊपर से नीचे क्या क्रम होना चाहिए, दाएं से बाएं क्या क्रम होना चाहिए, ताकि वो छवि एक समान दिख सके। By God's grace, it went well, and the game also was good, and everybody followed that plan. Actually. और बहुत ही अच्छा प्रभु के अनुग्रह से वो गेम रहा और सबको ही वो योजना उस गेम के अंदर वो भाग बन सका। I was hearing God saying that Jeremiah 29:11 says, "For I know no need to read. It says that I know the plan I have for you, declares the Lord." और यिर्मयाह 29:11 में जैसे हम पढ़ते कि परमेश्वर कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं। All I know, he says. और वो कहता है मैं जानता हूं, ऐसा लिखा हुआ है। He knows that is to prosper. और वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी संपन्न कुशलता के लिए, संपन्नता के लिए है। I made everything very clearly for you. और मैंने सारी बातों को बड़े साफ साफ क्लियरली तुम्हारे लिए बना के रखा है। Sometimes I am not able to understand that plan. और कई बार मैं उस योजना को नहीं समझ पाता हूं। When brother was giving that one piece of puzzle, we don't know where it comes actually. और जैसे हमने उस पजल का एक पीस देखा, हमने देखा कि वो कहां पर जाएगा, कहां फिट होगा, हम नहीं जानते उसको। That email that comes, the SMS that comes, we don't know exactly what that email is meant for the picture of a God. और जो वो ईमेल आता है या कोई मैसेज हमको प्राप्त होता है तो हमको नहीं समझ आता है कि परमेश्वर की योजना के अंदर वो कहां पर फिट होगा। I have to trust him. और मुझे प्रभु पर भरोसा रखना है। Acts 46. और Isaiah 46. और माफ करना, यशायाह उसका 46 अध्याय verse 10. वचन 10। The Bible says, declaring the end from the beginning and from the ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. यशायाह 46:10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उन बातों को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। So he knows the end from the beginning. वो यहाँ लिखा है कि मैं अंत को आदि में ही जानता हूं, परमेश्वर कहता है। Because he knows everything clearly, I should only trust him. वो सारी बातों को बड़े साफ रीति से परमेश्वर जानता है, मेरा काम केवल भरोसा रखना है। Trust is nothing but surrender. और भरोसा रखना ये और कुछ नहीं है, केवल समर्पण करना है। Everything he knows. और हर चीजें वो जानता I है। have to keep my conscience clear. और मुझे अपना विवेक जो है उसको शुद्ध बनाए रखना है। And keep hearing what he has to say. और वो जो परमेश्वर कहना चाहता है उसको मुझे निरंतर सुनना है। He goes right, I should go right. और जो यदि वो बाएं जाता है, मुझे वहां दाहिने वही दिशा में जाना है। If I miss the direction, then I have to ask again. और यदि मैं दिशा को भूल जाता हूं, मुझे फिर से प्रभु से मांगना है।
If I don't do this, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं, Acts 5:39 helps me to understand. और प्रेरितों के काम 5:39 मुझे मदद करता है इस बात को समझने में। But if it is of God, you will not be able to overthrow them, or else you may be even found fighting against God. प्रेरितों के काम 5:39, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। Here, Gamaliel gives a counseling for the background is about, he's giving a background, who these people are, you know. और गमालियल जो है यहाँ पर पृष्ठभूमि में ये लोग कौन है, ये शिष्य लोग कौन है, उसका एक वहां पे परिचय दे रहा है। If I don't, go with the plan, maybe I'll be fighting against God. और यदि परमेश्वर की जो योजना है उसके साथ साथ मैं नहीं चल रहा हूं तो शायद मैं परमेश्वर से युद्ध कर रहा हूं या उसके साथ लड़ाई कर रहा हूं। If I don't surrender, maybe I'm fighting God. यदि मैं आज समर्पण नहीं कर रहा हूं तो शायद मैं परमेश्वर से एक लड़ाई को लड़ रहा हूं, मैं उसके विरोध में झगड़ा कर रहा हूं। Almost like the Bible story, 12 years, more than 12 years, my wife was struggling with some certain sickness actually. और बाइबल में जो कहानी है उसी रीति से मेरी पत्नी भी 12 साल से कोई बीमारी से पूरी तरह से वो जा रही थी। I in the camp, I met a brother. और कैंप में मैं एक भाई से मिला। I just he was asking me very sincerely, he was asking me what happened, how are you, and all those things. और बहुत ही ईमानदारी से सच्चाई से भाई मुझे पूछ रहे थे कि कैसे आप है, क्या हुआ आपके साथ। With some reluctance, I just said, my wife was sick, and because that one day in the midweek meeting, I put a text in the group itself. और मैंने ईमानदारी से भाई से कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने जो मीटिंग जो होती है हमारी वीकली उसके अंदर भी मैंने ये संदेश को डाला था। He gave me one advice. उस भाई ने मुझे एक सलाह जो दी, I followed that advice. उस सलाह को मैंने पालन किया। I see God is answering, and my wife is telling, I'm better now, and it is almost getting healed. और मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो उसमें से उसको चंगाई मिल रही है और तकरीबन पूरी तरह से चंगी वो हो चुकी है। इस प्रकार मेरी पत्नी ने भी मुझसे कहा। That one meet with him, that was the puzzle piece. और वहां पर एक मोड़ जो था वो एक पजल का एक टुकड़ा, एक पीस के जैसा मुझे इस भाई के साथ मिला। But the plan was waiting there. और वहां पर वो योजना जो मेरा इंतजार कर रही थी। So many nights sleeplessly, my wife used to struggle. और कई बार बिना सोए मेरी पत्नी जो है संघर्ष कर रही थी। But when I surrender and talk to someone whom I trust, things changes. और जब मैंने पूरी तरह से समर्पण किया और जिस पर मैं भरोसा रख सकता था, उस भाई से जब मैंने इसको साझा किया, बांटा। I want to take this, brothers and sisters. मैं भाई और बहनें इसको मेरे जीवन में लेना चाहता हूं। He knows my life very clearly. मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बड़े साफ रीति से क्लियरली जानता है। Few days back, I was worried about all the MOUs are not getting signed and all those things. और कुछ दिन पहले मैं बहुत ही चिंतित था कि मेरे जो काम के जो MOU होने चाहिए, जो अग्रीमेंट, वो सारे साइन नहीं हो रहे थे। One by one, it's all getting on. और एक के बाद वो आगे बढ़ने लगे। When I see the sleepless nights were all waste actually. और मैं देख रहा था कि बिना नींद की रातें जो थी पूरी तरह से व्यर्थ थी मेरे जीवन में। When he is in control, I have to surrender. जब परमेश्वर नियंत्रण में है तो मुझे पूरा समर्पण करना चाहिए। I want to confess that. और मैं इस बात को मानना चाहता हूं आज। That is my faith this morning. और आज सुबह मेरा ये विश्वास आज प्रभु किस लिए है। Thank you. धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज के वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे ब्रदर की जो ये बात बहुत प्रभावित लगी मेरे जीवन में, कि जो ब्रदर ने कहा कि प्रभु अगर तू मेरे लिए करे तो मैं अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद दूंगा, और अगर आप मेरे लिए ना भी करे तो भी मैं अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद दूंगा। तो सच में मैं अपनी पिछली बातों को सोचकर मैं बहुत ही धन्यवादित हुई इस बात के लिए कि मैंने कई बार अपनी टेस्टमनी को बताया कि मैं बहुत कठिन परिस्थितियों से जब गुजर रही थी तो मैं उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करती थी अपनी परिस्थितियों के लिए कि प्रभु आप मेरी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन उसके बाद कई बार मेरा विश्वास डगमगाया भी, और जब मेरा विश्वास डगमगाता था तो उस समय मैं सोचती थी कि क्या मैं प्रभु में बनी हुई हूँ, क्या सच में मेरा विश्वास बना हुआ है, या फिर मेरा विश्वास क्यों डगमगा रहा है। और जब
बातों को सोचती थी और प्रार्थना करती थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसा सोचती थी कि शायद मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, तो क्या मैं प्रभु का धन्यवाद नहीं दूंगी। और यही बातें सोचते सोचते कई बार मैं प्रार्थना करती थी और विश्वास करती थी, और कई बार विश्वास में डगमगाती थी। लेकिन प्रभु की बातों से और प्रभु के वचन से और जो लीडर्स हैं उनकी बातों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था, और मैं अंकल जैक का भी वचन सुनती थी तो उससे भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और एक वचन जो रिलेटेड है आज के वचन से, जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में फेंका गया तो उसने बोला कि हे राजा परमेश्वर हमें तुझसे बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर परमेश्वर ना भी बचाए तो भी हम इस मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। तो यही एक वचन मुझे बहुत मेरे जीवन में प्रभावित किया, और मैं उस समय ऐसा प्रार्थना करने लगी प्रभु से कि सिर्फ प्रभु इसके लिए नहीं कि मेरे जीवन में मेरा सब कुछ ठीक हो जाए इसके लिए, लेकिन प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां कंटिन्यू बनी रही और कुछ भी ना बदले तो भी प्रभु मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सच में परमेश्वर ने उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने लगी तो मैं अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ अपनी परिस्थितियों के साथ मैं बहुत खुश रहने लगी, और मैं कभी अपनी परिस्थितियों से जब भी निराश होती थी और फिर जब मैं प्रार्थना में बैठती थी तो परमेश्वर मुझे एक अलग ही आनंद से भरता था। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी परिस्थितियां चेंज हुई और मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए भी जब परिस्थितियां कठिन थी और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मुझे भरा। सो आज मुझे ये वचन से रिमाइंड आया और मैंने इस चीज को बांटा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। भाइयों बहनों, मैं भी कुछ बांटना चाहता हूँ। इन दिनों मैंने परमेश्वर का विश्वास योग्यता का अनुभव किया। कैंप जाने से पहले हमारे काम की जगह पर हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि हम जून में एंड करने जा रहे हैं, कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, ऑफिस सब शट कर रहे हैं, आप नया जॉब देखना शुरू कीजिए। तो कैंप के 2-3 दिन पहले ही उस सुनने के बाद में मैंने काम को देखना शुरू किया। हालांकि कैंप आने के दिन भी मैं एक इंटरव्यू देकर आया। उस समय में मेरे मन में ये बात चल रहा था कि परमेश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, और जो कुछ भी होता है सब उसके नियंत्रण में है। ये चीज़ें आ रहा था जब कभी मेरे मन में ये विचार आ रहा था, जब एंग्जाइटी आ रहा था उसके बारे में, जब निराश हो रहा था, तो परमेश्वर इस वचन से मुझे बल दे रहा था। और मैं देख पा रहा हूँ कि विथिन 15 डेज 15 दिन के अंदर जो है परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला, और परमेश्वर ने मुझे जॉब दिलाया। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों ने प्रार्थना किया और बहुत लोगों ने कोशिश भी की, मेरे रिज्यूम को फॉरवर्ड किया, प्रार्थना किया। प्रभु हो गए, अबू भी, उन्होंने भी कॉल किया था कि जॉब के ऑफर को लेकर आए थे। इस तरह बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया, और प्रभु का विश्वास योग्यता को मैं देख पा रहा हूँ कि भले कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ नियंत्रण में रखता है, और एक भली चीज है, भलाई हमारे लिए करता है। उसकी जो प्लान से हमारे लिए उत्तम ही होते हैं। और प्रभु ने मेरे लिए नियर बाय का जॉब ही मुझे दिया है, और परमेश्वर ने इस समय में उसकी विश्वास योग्यता को मेरे जीवन में प्रकट किया। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही जल्द मुझे काम दिलाया। मैं सोच रहा था कि अगर काम परमेश्वर अगर लेट भी करता है तो भी मैं उसमें बना रहूं, परमेश्वर सही समय पर मुझे दिलाएगा करके मैं विश्वास में था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उतना वेट करने इंतजार करने नहीं दिया, बल्कि 15 दिन के अंदर ही मुझे काम दिलाया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी का मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप सभी की प्रार्थना के द्वारा ये संभव हो पाया, परमेश्वर ने ये चमत्कार किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू आप सभी को। मैं यहाँ पे कुछ बांटना चाहता हूँ। जैसे भाई सुरेश ने बताया कि उन्होंने प्रभु की विश्वास योग्यता का अनुभव किया, तो एक वचन मैं बांटना चाहता हूँ जो यशायाह आइज़ाया का 41:10 है। उस वचन में ऐसे लिखा है कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा,
अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसी वचन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। सो डू नॉट फियर, फॉर आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचस राइट हैंड। तो ये जो परमेश्वर का वायदा है, जिसमें ऐसे लिखा है कि जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, उनकी परमेश्वर केवल सहायता ही नहीं करता है, बल्कि उनको दृढ़ भी करता है, और दृढ़ करने के बाद वो उनको संभाल के भी रखता है। और एक वचन मैं बांटना चाहता हूँ। ये भी यशाया का, आइजया का 40:31 है, जिसमें ऐसे लिखा है कि परंतु जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि बट दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint। जैसे हमें मालूम है कि जो उकाब, जो ईगल होता है, वो जब ऊंचाई पर उड़ता है तो वह इनफैक्ट उसके पंखों की ताकत से नहीं, बल्कि हवा की धारा पर निर्भर होता है। तो हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी उन्नति करता है, तो वो उस समय पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। ना कि हम हमारे सामर्थ्य से या हमारे टैलेंट से या हमारे शक्ति से हम नहीं उठाए जाते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा की मदद और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उठाए जाते हैं। मैंने आज जो भी सुना, जो जितने भी वचन हमने सुने, जो भी भाइयों ने बांटा, बहनों ने बांटा, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे वचनों से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। धन्यवाद। मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं आज चर्च का मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं सुन पाऊँगी। अगर मैं आज मिस करती तो मैं सच्ची बताती हूँ कि जो प्रोत्साहन मुझे आज मिला मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे कमज़ोर इस चर्च में अगर कोई है तो मैं ही हूँ। और आप लोगों ने जो शेयर किया, मुझे इतना मतलब ऐसा लगा कि मुझे पता है एक दिन प्रभु भी मुझे ऐसे जो मेरे अंदर भय है वो सब मुझे निकाल देंगे। और सच में अगर मैं आज नहीं सुनती ये सब, कितना मतलब कितना अनमोल चीज़ मैं खो देती। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पता है कि एक दिन जो आप लोगों को अनुभव हुआ है, जो आप लोगों के साथ एक जन के साथ हुआ है, वो मेरे साथ भी होगा। और मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे भी वो ताकत देंगे, और जो अभी मैं डर वाली जिंदगी जी रही हूँ, वो डर से भी मुझे निकाल देंगे। और जो पाप से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, वो भी वो मेरे लिए करेंगे। मुझे वो विश्वास है। मुझे पता है कि मैं अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकती, और प्रभु ही मेरे लिए यहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकती कि ये कलीसिया मुझे प्रभु ने दिया है। और मैं सच में बहुत एनकरेज हुई आप लोगों के जो वचन मैंने आज सुना। मैं भी चाहती हूँ, मेरे भी दिल की यही इच्छा है कि मैं भी पूरी तरीके से प्रभु में ही बनी रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज जो भी भैया ने शेयर किया वो बहुत एनकरेजिंग था। जो उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने आप को सरेंडर करना है, ना कि बहुत कंट्रोल करना है। बहुत चीज़ें मैं जीवन में अपने आप से कंट्रोल करके बहुत चिंता और बहुत निराशा भी होता है। लेकिन भैया ने बताया कि कैसे हमें उन्हें प्रभु के सामने सरेंडर करना है, ताकि हम उनमें सरेंडर करके वो पीस, वो शांति को पाए। और एक चीज जो प्रभु ने मुझे कन्विक्ट किया, जो भैया शेयर कर रहे थे, कि बहुत बार ऐसे मैसेजेस सुन के, हर एक चीज सुन के, वो CFC का एक टैग जो मिल जाता है, वो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और लगता है कि हम
प्रभु में बहुत आगे है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा बढ़ रही हूँ, प्रभु का हर एक वो मैसेज जो एक डायरेक्ट मिलता है, जो मे बी बाइबल में मैं पढ़ूं तो मुझे उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब जाकर अंकल का सुनती हूँ या हर एक मैसेज जब सुनती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बस सुनने तक ही सीमित रह जाता है। मैं कल एक वचन पढ़ रही थी याकूब से, अ, उसमें याकूब का 1:22 में ऐसा लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। तो इस वचन से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत चीज जो बाइबल में पढ़ती हूँ या मैसेज में सुनती हूँ, सिर्फ उसे सुन रही हूँ, उस पे चलने का बहुत कम कोशिश कर रही हूँ। और उसके आखिर में जो लिखा है कि जो केवल सुनता है वो धोखा देता है। वो जो केवल बस उसे सुनता है, जैसे कि मैं बहुत चीज बस सुन रही थी, लेकिन सही में वो चीज में चलने का बहुत कम कोशिश कर रही थी। हर एक परिस्थिति में या जैसे हर एक चीज जो वचन बोलता है, जैसे मैंने अंकल का डेली डिवोशन में भी ऐसा सुना था कि ये नहीं कि हम 50 बार बाइबल पढ़े, मगर एक बार वो बाइबल हमारे अंदर से जाने पाए। तो मैं प्रभु के सामने ये बात रखती हूँ, सरेंडर करती हूँ कि प्रभु होने दे कि हर एक वचन जो उनका पढ़ रही हूँ, जो भी सुन रही हूँ, उसमें से प्रभु वो हर एक चीज जो सुनती हूँ उस पे चलने पाऊँ। जैसे हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हमेशा सुनती हूँ, लेकिन वो परिस्थिति में जाने अनजाने न्याय कर देती हूँ, बहुत बार बहुत कुछ बोल देती हूँ। लेकिन उन सब बातों को प्रभु के सामने सरेंडर करना चाहती हूँ कि प्रभु सहायता करे कि एक एक बात को मैं मान सकूं, ताकि प्रभु के और समीप आ सकूं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि उन्होंने ये बात मेरे सामने लाया, कि वो एक जो सेटिस्फैक्शन था कि अच्छा वचन मिल रहा है, अच्छा वचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मन के वो धोखे को दिखाया कि अच्छा वचन बस सुन रहे हैं, वो एक धोखा में है। मैं अपने आप को डिसीव कर रही हूँ कि मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, लेकिन वो मेरा बढ़ना नहीं था। तो प्रभु ने मेरे इस हालात को मुझे दिखाया, और उस धोखे का मुझे प्रभु ने कन्विक्ट किया। जो आज भैया ने शेयर किया, उससे भी प्रभु ने वापस से याद दिलाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो हर एक बातों में प्रभु में बढ़ने में मुझे और सहायता कर रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। और आप सभी का धन्यवाद कि हर एक चीजों में मुझे संगति से और मैसेज से बहुत बढ़ने में सहायता मिल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मेरे हर एक बातों से प्रभु को महिमा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। परमेश्वर ने मुझसे भी ये रिमाइंड करवाया जो पजल के बारे में ब्रदर ने बताया। तो जितना भी हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं वो एक सिंगल एक पजल है। तो परमेश्वर है जो पूरे होल पिक्चर को, परमेश्वर को पता है कि उस पूरे पिक्चर में वो पीस कहाँ फिट होगा। और हम लोग कई बार उस पूरे पिक्चर को देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम कई बार दुखी होते हैं और कई बार परेशान होते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर उस पे मुझे रिमाइंड करवाया। सो मैं लास्ट ईयर नॉर्वे में आया था। उससे पहले जब मैं इंडिया में था तो मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर एक्सपीरियंस है। तो वो टोटल जो 20 ईयर मैं पूरा अंडर पेड रहा हूँ हमेशा। तो जहाँ मैं जॉब करता था उससे वहाँ पर जो मेरे पीएस थे सबसे कम सैलरी हमेशा मेरी रहती थी। और उसमें तो जब भी मैं वहाँ से, क्योंकि मैं पंजाब में था चंडीगढ़ में, तो वहाँ से अगर तो और वहाँ कंपनियाँ कम थी, आईटी की कंपनीज, तो मुझे या तो मैं बेंगलोर जाता या नोएडा उस तरह से कहीं देखता। तो उसमें जब जब मैं ट्राई करने की कोशिश करता था तो परमेश्वर मुझे वचन से यही बात करता था कि वेट फॉर मी।
तो इस तरह से काफ़ी जब टाइम बीता तो साथ साथ में मैं भी निराश होने लगा, क्योंकि जब हमारे प्रेयर के आंसर नहीं आते तो हम धन्यवाद देना बंद कर देते हैं। तो वो परमेश्वर उन चीज़ों पे वो धीरे धीरे सिखाता रहा कि अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो सारे जो पजल्स थे वो मुझे परमेश्वर की इच्छा में लाने के लिए और परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाने के लिए था। तो जैसा ब्रदर ने शेयर किया था कि हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना है। तो उस तरह से ये 20 ईयर मेरा इसी तरह से निकला। लास्ट के कुछ टाइम पे परमेश्वर ने मुझसे कुछ वचनों से जब बात किया, कि जब यीशु 5,000 लोगों को खिलाने के लिए जब यीशु वहाँ पर यीशु ने ब्रेड को उठाया, तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने धन्यवाद दिया और ब्रेड को तोड़ा। और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने उस वचन से मुझसे बात किया कि अभी वहाँ पर कोई अद्भुत हुआ नहीं है, परंतु अद्भुत होने से पहले ही यीशु ने धन्यवाद देना शुरू कर दिया। और उसके बाद धन्यवाद देने के बाद रोटी तोड़ी। और मैं ऐसा सोचता था कि मेरे जीवन में जब एक अद्भुत काम होगा उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो परंतु परमेश्वर ने मुझे उसका बिल्कुल ऑपोजिट मुझे सिखाया कि कुछ होने से पहले धन्यवाद देना है। और इस तरह से मैंने वो धन्यवाद देना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझसे दोबारा बात किया कि जैसे यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ, वहाँ भी यीशु ने लाजर को जीवित करने के बाद उसको धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर को पहले धन्यवाद दिया, फिर उसके बाद वहाँ पर एक अद्भुत कार्य होता हुआ देखा। तो परमेश्वर उन चीज़ों ने परमेश्वर ने उन वचनों से मुझसे बात किया और मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। कोई भी परिस्थिति, जैसे भी परिस्थिति उसमें मैं धन्यवाद करता रहा। और इस तरह से परमेश्वर ने मेरे लिए उसके बाद रास्ता खोलना शुरू किया। तो और जब मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो परमेश्वर ने मुझे वो सब चीज़ें सिखाने के लिए शायद ऐसी परिस्थिति परमेश्वर मेरे को लेके गया। और वो सिर्फ एक पजल था, का एक पोर्शन था, जैसा आज ब्रदर ने बताया। तो पूरा पिक्चर परमेश्वर जानता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए उस पर्टिकुलर पीस का मेरे लाइफ में होना जरूरी था। तो उस सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन में वो सारी बातें परमेश्वर ने मुझे दोबारा रिमाइंड करवाई, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। और मुझे आज के वचन से जो एक चीज रियलाइज हुई, जो ब्रदर ने पजल बताया उसमें पजल एक जो पीसेस बताए थे उसमें एक पीस था वाई बोलते। तो वो जो पीस था वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा, मेरे जीवन में, मेरे मसीह जीवन में रुकावट का कारण था वाई। क्योंकि मैं हर चीजों में मैं एक, मेरे जीवन में वाय हमेशा रहता था कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। मैं सब चीजों में सही चल रहा हूँ, मैं सब चीजें कर रहा हूँ, बट ये वाय मेरे जीवन में क्यों है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों है, किसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और 2012 में और 2014 में मिसेस के 2 बार मिस कैरेज हुए थे। बट मैं पूछा कि प्रभु ये हुआ क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बट 2014 में जब दोबारा मिसेस प्रेग्नेंट हुई और मैं काफी कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला इस बार कुछ नहीं होगा, प्रभु हर बातों को ठीक करेगा। क्योंकि पिछली बार हो सकता है, हम फर्स्ट टाइम था और हमारे से काफी गलतियां आई होंगी, हम समझ नहीं पाए वो प्रेगनेंसी को, हमारी वजह से वो गलतियां हुई और जिसकी वजह से वो मिस कैरेज हुआ। और बट 2014 में जब मिस कैरेज दोबारा हुआ तो मैं काफी काफी डिप्रेशन में गया। मैंने बोला प्रभु ऐसा क्यों हुआ। इस बार तो हमसे कोई गलती नहीं हुई और जितना सब चीजें हम कर सकते थे उससे ज्यादा हमने सब चीजें सावधानी से बरती, बट क्यों ऐसा हुआ। और ऐसे ही कई जीवन में और भी काफी सिचुएशन थी मेरी लाइफ में कि उसमें वाय था कि क्यों ऐसा प्रभु मेरे साथ हुआ। बट जैसे जैसे मैं वचन में आगे बढ़ा और जैसे जैसे अच्छी संगति मुझे मिली और वचनों में मैं समझने लगा वचनों को, तो मुझे पता चला कि वो वाय मेरे जीवन में क्या है। क्योंकि मेरे जीवन में मैं था, मी था, कि मैं कर रहा हूँ, मैं सब चीजें कर रहा हूँ। और ये सब चीजें प्रभु ने जब मुझे बताई ना, अमित जब तेरे अंदर से जब तक मैं नहीं निकलेगा तब तक वाय नहीं निकलेगा। तो प्रभु ने वो मेरे अंदर से जो मैं पना है ना वो निकालने में मेरी बहुत मदद करी प्रभु ने। और करीबन मैं ये चीजें देखता हूँ लॉकडाउन के बाद से मेरे जीवन में ये चीजें हुई कि मेरे जीवन में से जो मैं पना था ना वो चीजें निकलती गई।
कैसे निकली, मैंने उसके अंदर कुछ नहीं किया, बट प्रभु ने ही ये सब चीजें निकाली। और आज मैं अपने जीवन को देखता हूँ और परखता हूँ ना कहीं मेरे अंदर, मैं उस चीज को देखता हूँ कि पहले से कहीं ना कहीं मेरे अंदर से मैं पना चला गया। मैं सब चीजें प्रभु पे डालता हूँ, और अगर मेरे जीवन में कोई भी बात हुई तो उसका पूरा श्रेय भी मैं प्रभु को देना मैंने सीखा है। प्रभु सिखाता है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर के मेरे अंदर से आजकल जो चीजें थी वो बदलती जा रही हैं, और मेरे अंदर से आज अगर 2025 में मैं देखता हूँ तो मैं जो भी है मेरे अंदर वो वाई की जो एक कहीं ना कहीं उपस्थिति थी वो नहीं है, और प्रभु ने उस चीज में से मुझे बाहर निकाला। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। और जो वचन मुझे सबसे ज्यादा चुनौती दिया, मैं पिछले कई दिनों से मैथ्यू 3:11 पे रुका हुआ हूँ, और कि जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो उसी कड़ी में मुझे एक और वचन आज प्रभु के दास से सुनने को मिला कि व्यवस्था 6:13 की वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। तो 12 वचन में भी लिखा है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को भी जलाए। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमें भी ये प्रीस्टहुड का काम प्रभु ने दिया है कि हम भी याजक हैं। तो हमें इस अपनी वेदी पर जो कि आज हमें तैयार करनी है, खुद ही करनी है और सजा कर करनी है। हमें दुखी होने के साथ हमें अपनी कोई भी किसी भी डिजायर्स को हमें दुख के साथ वेदी पे नहीं रखना है, खुशी के साथ सजा कर रखनी है। प्रभु ये तेरा है, मेरे अंदर ये इच्छा है, मुझे इसको जलाकर खत्म करो ताकि मैं पवित्र बनूं, तेरे जैसा मुझे बनने के लिए मेरी मदद कर। तो पवित्र आत्मा इसलिए ही आया कि ताकि मुझे पवित्र करे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।